Hi everyone, my name is Rudraksh and before this video starts, I want to say something. अगर तुम ये वीडियो में ये सोचकर आए हो कि इस वीडियो को देखने के बाद हमें आखिरी के 15 दिन में बिना पढ़े कोई ऐसी स्ट्रैटेजी मिल जाएगी या कोई टाइम टेबल मिल जाएगा या कोई पॉइंटर मिल जाएगा जिसको करके हम उन लोगों से आगे निकल सकते हैं जो 6 महीने, 8 महीने, 1 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, then I'm sorry my friend, this video is not for you. This is our annual 15-day revision series जो हम पिछले 2 साल से कर रहे हैं. This is the third year, जिसमें हम सिर्फ वो पॉइंट डिस्कस करते हैं which can be a game changing part of your preparation, this last lap of your preparation, क्योंकि इस last lap में सबसे ज़्यादा जोर लगाना होता है. बट अगर तुमने इससे पहले वाली रेस में पार्ट ही नहीं लिया then you're not eligible for this, last lap. So this video is only for people who have been studying very diligently or in the recent time या पिछले 1 साल से या जो भी है, and they are now in the final stages. They want to quickly sum everything up. उनको proper एक revision मिल जाए ताकि उनका maximum performance हो, maximum peak efficiency पे हो ये last के 2 weeks, and so that they can perform their best on their D-Day. So in this video I promised कि अगर ये वीडियो पे 200 likes होते हैं I'll drop the revision video immediately, and तुम लोगों ने बहुत जल्दी वो पूरा करवाया. So here I'm keeping my promise. revision video ये रही. अब इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? I'll ensure कि this year we give a better strategy than last year. We'll talk on some key pointers that are golden rules जो तुम्हें इन 15 days में फॉलो करने ही करने होंगे. Some ground rules जो तुम लोगों को पूरे ये 14 दिन अपने आप को गांठ बांध के रखना होगा कि ये फॉलो करनी है. And then at the very last I'll tell you most important and must do topics for cons for each exam for IPMAT Law, रोहतक and GPAT. मैं तीनों के लिए बताऊंगा कि कौन से चैप्टर के कौन से टॉपिक्स तुम लोग को ये तो करके ही चले जाओ भले ही और कुछ करना ना करना. So make sure you stay till the end of the video for those topics. And without wasting any further time, without any further bullshit, let's start this video. I go through comments of all my videos and उसमें मैं देखता हूँ कि even though the content is for 2025 people, but 2026 aspirants are a lot active and वो काफी actively ये videos देख रहे हैं. In fact, इस video में भी I'm pretty sure a huge chunk of people are from 2026. So ये तुम लोगों के लिए है. यार देखो, आई अंडरस्टैंड जिस फेज में तुम लोग अभी हो तुम्हें काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि कौन से वीडियो लेक्चर्स देखने चाहिए, कौन से रिसोर्सेज यूज करने चाहिए, कौन सी कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए. फॉर दैट आई टेल यू PW हैज बीन इन दिस IPMAT स्पेस सिंस 2023 एंड उन्होंने काफी सारे स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स प्रोड्यूस किए हैं ओवर दीज ईयर्स. So for that reason, I would like to recommend their 2026 IPMAT course to you. In the IPMAT Master Quest 2026 batch, you'll get live lectures with experienced faculty, DPPs and video solutions, question banks, weekly practice tests, 15 plus mock tests and 24/7 doubt support. And if you're looking for something better than this, then you can go with IPMAT Pro 2026 batch. This includes everything in the Master Quest batch, plus you'll get 30 plus mock tests and access to all the batches that were launched in the previous year and will be launched this year. In my opinion, you can go with IPMAT Pro 2026 batch because it gives so much flexibility and value at such a low price. And if you use my code RPS500, you'll get an additional discount. I have given the link in description, so ensure that you're going and checking them out. अब चलते वापस वीडियो में. देखो यार, अगर मेरा IPMAT का एग्जाम नेक्स्ट 2 वीक्स में होता तो मैं इंश्योर करता, मुझे बाकियों का पता नहीं, बट मैं खुद से इंश्योर करता कि मैं हर दिन एक मॉक जरूर लगाऊं. दिस माइट साउंड वेरी कंट्रोवर्शियल टेक, क्योंकि सब लोग बोलते हैं अब मॉक कम लगाओ, कम मॉक लगाओ, बट माई बिलीव इज कि मॉक्स आर अ वेरी प्रैक्टिकल ऑप्शन फॉर यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग सम रैंडम मटीरियल, आई वुड प्रेफर सॉल्विंग अ मॉक, क्योंकि उससे बहुत सारे एडेड एडवांटेज है. मुझे काफ़ी ज़्यादा अपने टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव होती है, मेरी सीटिंग कैपेसिटी बढ़ती है, मेरी बहुत सारे मुझे एडवांटेजेस मिलते हैं, मुझे एग्जाम लेवल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने को मिलते हैं अंडर अ टाइमर. सो आई वुड सजेस्ट यू ऑल गाइज टू इंश्योर दैट यू आर सॉल्विंग 1 मॉक एवरी डे. कौन सा मॉक वो करना है? आइडियली इट शुड बी अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तुम्हें कहाँ से मिल सकता है? देयर आर वेरियस इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने प्रीवियस ईयर पेपर को एज अ मॉक अपने पोर्टल पे अपलोड करके रखा है. few of them I have said in my previous videos also. You can check out afterboards also. वहाँ पे free past year papers है that you can attempt. You can attempt afterboards पे वो previous year papers.
जाओ उनको अटेम्प्ट करो, बढ़िया से एनालाइज करो। एनालाइज कैसे करना है उस पे भी मैंने एक वीडियो बना के रखी है, बट अगर उसको तुमने देखा है तो वेरी गुड, अगर नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। सिंपली तुमको उसके एनालिसिस में एवरी रॉन्ग आंसर, एवरी अनअटेम्प्टेड आंसर एंड एवरी आंसर दैट यू डिडंट नो द आंसर बट गेस और वो गलती से सही हो गया, उनको भी सबको अच्छे से रिवाइज करना है। जस्ट इंश्योर दैट यू आर ट्रीटिंग ईच मॉक एज अ रियल एग्जाम। अब वो टाइम चले गए कि बीच मॉक में उठ रहे या फोन देख ले रहे, कुछ नहीं। 2 हफ्ते बाद 3 हफ्ते बाद अभी से एग्जाम है। जिपमैट वालों का भी 1 हफ्ते बाद ही एग्जाम है। प्लीज इंश्योर दैट तुम ये पूरे टाइम पे जो मॉक दे रहे हो वो एक्चुअल एग्जाम टाइमिंग पे दे रहे हो, उसे एक्चुअली ट्रीट कर रहे हो और बिना किसी चीटिंग के दे रहे हो। So this will help you and take you a long way in your revision preparation. Another point that I would like to mention कि अगर इस point पे तुम अगर कोई नया चैप्टर, नया बुक, नया मटेरियल कुछ भी स्टार्ट कर रहे हो, प्लीज अभी मत करो। A better thing to do at this point of time is to resolve, reanalyze and reevaluate your existing material जो तुम पहले से पूरे साल भर करते आए हो, जिसके साथ तुम टच में हो। अगर तुम उस मटेरियल को एक बार ही पूरा सॉल्व कर सकते हो, 2 बार करो, 2 बार कर चुके, तीसरी बार, चौथी बार करो, बट कोई नया मटेरियल अभी स्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। एंड इंस्टेड आई विल डू यू वन बेटर। अगर तुम्हें अच्छे से पूरे अपने कोर्स का रिविजन चाहिए, वो कैसे करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि जाओ यूट्यूब पे जाओ, वहां पे लिखो अपने पर्टिकुलर टॉपिक एंड उसके 1 शॉट वीडियो देखो। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यूट्यूब पे जाऊंगा और मैं लिखूंगा अरिथमेटिक 1 शॉट कैट लिखना जरूरी, क्योंकि कैट का कंटेंट बहुत ज्यादा है। यू विल फाइंड वेरी गुड चैनल्स दैट प्रोवाइड 1 शॉट वीडियो। 7, 8, 10 घंटे की वीडियोस होंगी, चलेगा, बट एक बार अगर तुमने उस वीडियो को पूरा देख लिया, तुम्हारा वो पूरा का पूरा सेक्शन अच्छे से हो चुका होगा। 5 ही है तुम्हारे पास, अरिथमेटिक, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, मॉडर्न मैथ्स एंड ज्योमेट्री। नंबर सिस्टम और मॉडर्न मैथ्स एक ही दिन हो सकते हैं। सो अल्टीमेटली 4 दिन अगर तुमने ये एक दिन पकड़ के लेक्चर्स देख लिए ना, तुम्हारा काफी अच्छा रिवीजन हो जाएगा। एंड प्रैक्टिस के लिए भी तुम सिर्फ वही मटेरियल यूज करना इन लेक्चर्स के बाद जो तुम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हो। रीसॉल्व दैट एग्जिस्टिंग मटेरियल। सो गाइस, जिपमैट का एग्जाम अभी 4-5 दिन के अंदर ही है एंड यू गाइस मस्ट बी स्ट्रेसिंग आउट अ लॉट अबाउट इट. So I want to actually share a lot of things about GIPMAT that helped me get 99.54 percentile in my GIPMAT. I scored 358 out of 400 back in 2022. So I want to share everything with you guys. So मैंने सोचा I'll keep a live session here on YouTube and उसकी टाइमिंग एंड सब कुछ मैं आज ही अनाउंस कर दूंगा जैसे ही ये वीडियो आउट होगी. So please ensure you subscribe to this channel and मैं ये IP मैट इंदौर से और रोहतक से भी पहले करूँगा, तो सब्सक्राइब करके रख लेना so that you know when I'm coming live, when I'm doing all these things. चलो अब वापस वीडियो में चले. So basically this is an extension of the first point itself, जहाँ पे I asked you to solve one mock every day. I here recommend you and I insist you to reanalyze mocks that you have given in the past. क्या है, कई बच्चों ने मॉक्स जरूर दिए होंगे, भले तुमने 5 मॉक्स दिए हो या 25 मॉक्स दिए हो, कई बच्चों ने 40-40 मॉक्स दिए हैं, फर्क नहीं पड़ता. बट अगर तुमने काफी सारे मॉक्स दे रखे हैं या कितने भी दे रखे हैं, तुम्हारे पास एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रिपोजिटरी है क्वेश्चंस की दैट आर एक्चुअली कैन बी इक्विवेलेंट टू दैट एग्जाम लेवल क्वेश्चंस. सो इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना आर प्रेफर्ड ओवर सॉल्विंग एनी रैंडम मटेरियल. अगर तुम्हारे पास अरुण शर्मा तुमने है, ठीक है, वो सब प्रैक्टिस कर रहे हो, प्लीज एनालाइजिंग पास्ट ईयर मॉक्स या पास्ट मॉक्स को अपनी प्रायोरिटी पे नंबर 1 पे रखना, देन कोई और मटेरियल रखना. तो मेरा लॉजिक समझो. इफ इट कन्विंसेस यू, प्लीज गो अहेड डू इट. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ऑन एन एवरेज मान सकते हैं जिपमैट रोहतक और इंदौर का ऑन एन एवरेज के हर मॉक में तुम्हें 100 क्वेश्चंस मिलते हैं. कैलकुलेशन के लिए 100 क्वेश्चन ले लेते हैं. अगर तुमने इन टोटल 10 से 15 मॉक्स भी सॉल्व किए, मान लेते लोअर एंड पे तुमने 10 मॉक्स सॉल्व किए, यू ऑलरेडी हैव 1000 exam level questions which have a very high probability of them coming into the actual exam, or maybe a similar question with a changed value, because these questions were designed keeping in mind कि ये तुम्हारे actual environment, actual mock exam को और actual exam को simulate कर रहे हैं. So इस वजह से we need to make sure that we are reanalyzing these past mocks. अगर तुम्हारे वो 1000 क्वेश्चन एग्जाम लेवल के टिप्स पर हैं, तो यार फिर किसका सिलेक्शन नहीं होगा, तुम्हारा ही तो होगा यार. So please ensure that you are keeping this as your priority number 1 and make sure that all these questions are on your fingertips. पूरे साल भर या तो तुमने कई सारे नोट्स बनाए होंगे या तो कई सारे नोट्स इधर उधर से इंटरनेट से या दोस्तों से अरेंज किए होंगे. बट इन दिस लास्ट 2 weeks I want you to do थोड़ी सी मेहनत करनी है
and I want you guys to compress all those entirety of those notes into a single sheet of paper for each subject. जैसे for example क्वांट्स के लिए सिर्फ एक या मैक्सिमम 2 शीट्स लेनी है, उसको भर देना है पूरा, छोटे छोटे पूरी चीट शीट की तरह बनानी है उसे, जिसको तुम तुरंत रिवाइज कर सकते हो। उसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आ सकते हैं, कोई सिली मिस्टेक्स जो तुम बार बार करते हो उसको मेंशन करना है ताकि तुम वहां पे रिवाइज कर सको। व्हाट दिस विल हेल्प इज कि जब तुम अपना एक्चुअल एग्जाम देने जा रहे होगे, वहां पे जब बच्चे एक दूसरे से पूछोगे भाई वो फ्रस्टम का फॉर्मूला क्या है, भाई वो इनर इन सर्कल का फॉर्मूला क्या है, तुम्हारे पास वो चीट शीट है, तुम्हारे पास कोई स्ट्रेस भी नहीं है कि तुम्हें 200 पन्ने की नोटबुक को रिवाइज करना है। तुम्हें बस वो पर्चे निकालने हैं 2-3, 2 क्वांट्स के लिए हो गया, एक वर्बल के लिए हो गया, प्रोबेबली एलआर के लिए तुमने आधे पेज का बनाया होगा, तो 3-4 पन्ने पलटने हैं, 15-20 मिनट्स में यू आर डन। नॉट ओनली दैट, आई इवन गो ऑन टू द एक्सटेंट टेलिंग यू दैट कि उन चीट शीट्स को तुम हर बारी अपना जब मॉक देने बैठ रहे हो उससे 15 मिनट पहले रिवाइज करो। तुम हर सुबह रिवाइज करो, हर मॉक से पहले रिवाइज करो, और हर दिन रात में सोने से पहले रिवाइज करो। दिन में 3 बार वो शीट को आंखों के सामने से गुजारना जरूरी है। वो तुम्हें एक तरीके से फोटोग्राफिक मेमोरी की तरह सेव हो जाना चाहिए तुम्हारी ब्रेन में, एंड दिस विल हेल्प यू मैसिवली। आई कैन नॉट स्ट्रेस अपॉन कि मैंने जब ये किया था मुझे बहुत ज्यादा टायरिंग लगा था, मुझे एक बार कई बार लगा कि यार ये क्यों कर रहा हूँ, करने की जरूरत क्या है, बट व्हेन आई सॉ द बेनिफिट आई रियलाइज कि दिस इज वन ऑफ द फैक्टर्स दैट डिस्टिंग्विश्ड पीपल who are genuinely working hard for this exam and want to crack this exam, because it creates an impact, and definitely it will if you make those revision cheat sheets. Chalo, those were some points that I wanted to share with you guys regarding your revision strategy, but uske alawa bhi there are a couple of pointers that I wanted to share which may not be directly related to your revision but can massively impact your preparation in these last 15 days. पहला, अगर किसी सोशल मीडिया साइट पर हो तो प्लीज हट जाओ, बीट टेलीग्राम, रेडिट, इंस्टाग्राम, कुछ भी पे हो, व्हाट्सएप पे भी अगर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद करते हो ग्रुप चैट्स में, प्लीज लीव देम फॉर जस्ट 15 days. These 15 days won't ever come back and you will regret if अगर इन सारे प्लेटफॉर्म्स की वजह से you will miss out on a golden opportunity. So please ensure you're limiting your social media time. टेलीग्राम पे भी ज़्यादा बातें करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी ज़्यादा एंगेज होने की ज़रूरत नहीं है। अपना 15 दिन अपने एक सिंपल पीस ऑफ माइंड में बिताओ, विच वुड रियली हेल्प यू स्कोर मैक्सिमम। सेकेंड थिंग, अगर तुम्हें हिंट्स मिल गए होंगे इसके, बट अगर तुम्हें बेसिकली एक प्रॉपर मार्क्स का अपना इवैल्यूएशन चाहिए या अपने रिवीजन स्ट्रैटेजी का इवैल्यूएशन चाहिए या उसका पूरा परफॉर्मेंस को अपने उसमें लाना चाहते हो, you need to study at least 12 to 14 hours daily in this last period. लास्ट के 2-3 दिन मत पढ़ना, मतलब ऑब्वियस सी बात है, एग्जाम से 1-2 दिन पहले रेस्ट लो, पूरा 2 दिन रिवाइज करो, आराम से 7-8 घंटे की नींद लो, बट उसके अलावा 12-13-14 घंटे डालो, क्योंकि इतना सारी चीजें हैं, अगर इतना नहीं करोगे तो कोई ना कोई और करेगा और वो निकल जाएगा आगे। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो अभी मैं तुम लोगों को मस्ट डू क्वांट्स के टॉपिक्स बताऊंगा, उसके बाद मैं एक आइडियल डे का रफ स्ट्रक्चर बता दूंगा कि तुम्हारा एक आइडियल डे कैसा दिखना चाहिए, तो प्लीज मेक श्योर कि तुम वो वाला पार्ट जरूर देखो। So now the most awaited part comes where I'll tell you must do quants topic. देखो ये टॉपिक्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ इनको कर लोगे तो तुम्हारा एग्जाम डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, बट आई हैव सीन पास्ट ट्रेंड्स, आई हैव एनालाइज्ड पास्ट ईयर पेपर्स, एंड ये वो कुछ टॉपिक्स निकले हैं जो रिपीटेडली बार बार एग्जाम में पूछे गए, इनकी काफी ज्यादा हाई वेटेज है, या तो इनके डायरेक्ट क्वेश्चन आए या इनसे डिराइव्ड कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चन आए हैं, एंड इफ यू आर रिवाइजिंग योर एंटायर सिलेबस इन जस्ट 14-15 days, तुम इन चैप्टर्स को मिस बिल्कुल से बिल्कुल नहीं कर सकते हो। सो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग दीज चैप्टर्स। मैंने तुम्हारे काम आसान कर दिया, आई हैव लिस्टेड आई हैव गिवन अ लिंक ऑफ दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे एकदम डिटेल में कि कैसे कौन से टॉपिक्स का कौन से पार्ट्स तुम्हें करने, कितने टाइम में करने, कितने दिन में करने, उसकी मैंने एक डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे लिंक मिलेगी, फर्स्ट कमेंट में भी तुम्हें वहाँ पे पिन्ड कमेंट में तुम्हें लिंक मिल जाएगी, जस्ट गो देयर, एंड अगर कमेंट सेक्शन में जा रहे हो जस्ट पुट एनी कमेंट दैट यू लाइक एंड लाइक सब्सक्राइब कर देना। बट फॉर यू आई विल जस्ट गिव यू अ ब्रीफ कि कौन से टॉपिक हर एग्जाम में जरूरी है। इफ टॉकिंग अबाउट आईपीमैट इंदौर, अरिथमेटिक में टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो प्रपोर्शन, एवरेजेस appears very frequently with a good mix in MCQ and short answers. For algebra, it's linear equation, quadratic equation, basics of functions and inequalities. Number system, LCM, HCF, remainder, last digit, factorials, base system. For geometry and mensuration, basic triangles, circles, area volume के 2-3 क्वेश्चन you can find. Data interpretation rare, but
basic bar pie chart can appear in MCQ. Logarithm and indices में I could say 1-2 questions max आ सकते हैं, but it is very important topic. For IPMAT Rohtak, arithmetic is the main part and it covers almost 40 to 50% of QA paper. Mostly topic इंदौर जैसे same है, but topics like ratio, proportion, time, speed, distance and profit and loss appear very frequently as compared to others. For algebra, there should be a strong basis of equation, identities, inequalities. Basically, everything related to linear and quadratic equation should be on your fingertips. For ज्योमेट्री मिनिमल फोकस रखना, ज़्यादा नहीं आता है बट काफ़ी ज़्यादा थ्योरम वाले क्वेश्चन आ जाते हैं, तो मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग ऑल दोस थ्योरम क्वेश्चंस. Number system, only common ones like LCM, HCF and especially divisibility. Divisibility is an important topic for Rohtak QA section. Talking about GIPMAT, GIPMAT is also very arithmetic and algebra heavy. All topics that I have listed in Indore and Rohtak are applicable here, especially time, speed, distance, ratio, proportion and profit and loss. For number system, I would say this is very important but easy questions रहते हैं, so you can go ahead with the things that you have prepared for Rohtak. Like square root, simplification, board mass वाले जहाँ पे आते हैं वो काफ़ी ज़्यादा देखे गए हैं. मीन मीडियन मोड के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे गए हैं. Then for mensuration, surface area and volume of basic shapes is very very important. Algebra में again linear equation and basic identities is one of those key parts that you need to have. Plus skip higher level algebra, logs and complex geometry because they might not appear very frequently, and if you have never done it you can afford to leave it. So those were few important key topics of all the 3 exams, and इसके अलावा भी कई सारे topics है that I have listed down in that document. Go check it out. उसका print out निकलवा के तुम अपने दीवार पे लगा सकते हो, but ensure that you are checking that document and तुमको वहाँ पे proper crux मिल रहा होगा कि okay, this is how things happen. These are the important things. अब ये तुम्हें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लगे, तुम्हारे रिवीजन स्ट्रैटेजी पता लग गया है. सो नाउ कम्स हाउ एन आइडियल डे शुड लुक लाइक. सो अज्यूमिंग तुम 6 से 7 घंटे की नींद ले रहे होगे और तुम सुबह 8 बजे उठ रहे हो. सो सुबह जैसे ही तुम 8 बजे उठ रहे हो, तुम्हारा सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ना, आर्टिकल्स रीड करना, आरसी सॉल्व करना, ये सब तुम बेसिक वर्बल का स्टफ कर रहे होगे 1-2 घंटे के लिए. देन यू शिफ्ट टू वीडियो लेक्चर्स, वॉचिंग वन शॉट वीडियोस जो तुम्हारा दोपहर तक जाएगा. इसके बीच में ऑल योर एसेंशियल्स लाइक ब्रेकफास्ट वो सब भी हो रहा है. आई विल नॉट कवर टच अपॉन दोस. दोपहर में तुम्हारा एक मॉक का टाइम आएगा, क्योंकि यूजुअली मॉक जिपमैट का अगर है तो वो दोपहर में हो जाएगा, अगर तुम्हारे इंदौर और रोहतक के है तो वो सुबह की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. सो ऑल्टरनेट बिटवीन द टू. एंड जब तुमने ये मॉक लगाया उसके बाद टेक हाफ एन आवर ब्रेक, लंच करो, कम बैक. अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, या तो तुरंत ही एनालाइज कर सकते हो उस मॉक को, या उसे रात के लिए छोड़ सकते हो. आई वुड से रात के लिए छोड़ दो. अभी आओ, तुम वापस से अपने क्वांट्स के लेक्चर खत्म करो, वर्बल का अपने टारगेट्स खत्म करो, शाम के टाइम या रात के टाइम पे अपना मॉक एनालाइज करो. उसके साथ साथ जो कोई पुराना मॉक दे रखा है उसको भी पकड़ो, उसको भी एनालाइज करो. तो टेक्निकली तुम एक दिन में 1 मॉक दे रहे हो लेकिन एनालाइज 2 करो. रात में सोने से पहले तुम अपनी रिवीजन फॉर्मूला शीट को रिवाइज करो. और आई फॉरगॉट टू टेल यू, सुबह सुबह भी उठते ही वो रिवीजन फॉर्मूला शीट रिवाइज करो. So this is how an ideal day should be structured. I have left wide gaps between them so that you can fit in things according to your day and your requirements. And this is how you can manage this last phase of your preparation. देखो यार, just listen to this and I assure कि ये जो pointers मैंने बताए हैं, अगर तुमने अच्छे से अप्लाई कर दिया, you will be in your best form, peak efficiency पे होगे जब तुम अपने D-Day पे जा रहे होगे एग्जाम लिखने. This is your last lap of preparation. Please इसमें flunk मत करना. Many people who have studied for entire year but slacked down in this last part, they have regretted it. And थोड़ा सा भी अपना आराम compromise कर दो. लगाओ 12-14 घंटे लगाओ, 15 घंटे लगाओ पढ़ने में. You will cherish these moments 2 years, 3 years down the line. Ask me, I am here and I'll tell you कि ये कितने ज़्यादा important moments होते हैं. So yeah, with that being said, please ensure कि तुम वीडियो लाइक कर रहे हो, वो डॉक्यूमेंट चेक कर लेना, उसका प्रिंट आउट निकलवाओ. मस्ट डू टॉपिक्स ऑफ क्वांट्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड yeah, that's it. See ya. Have a good day. Bye bye.